Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Viewers, as you know, we are doing applications of linear equations, means solving word problems related to linear equations. Question: Amira is 4 years older than Priya and Shirley is 2 years younger than Priya. If the sum of their age is 47, find their respective ages. Turning to the solution, I hope you remember the steps for solving word problems. Number one, distinguish wanted results from the given ones. Okay, Zohaib, can you tell me what are the wanted results? What we have to find? Zohaib? Yes, sir. What we have to find? Priya ages. Yes, find their ages. Ages of Amira, Priya, and Shirley. We have to find ages of all the three persons. Yes, sir. These are the wanted results. And what are the given results? Basically, given results are the relations among their ages and sum of their ages. Okay. Yes, sir. Second step is using the given information, write the given data in organized form. Can you tell me what should we write here? Sir, Shirley ages is X. Okay. Assume the wanted result to an unknown variable. Age Yes. of Shirley. Because Yes. she is youngest one. Therefore, according to the given conditions, Shirley is youngest one. Therefore, we assume its age as X years. Then look at here. Shirley is 2 years younger than Priya. Priya's age of Priya will be X plus 2 years. Do X you know? plus 2 years. Yes, because Shirley is 2 years younger. We have to add 2 years in Shirley's age to get the Priya age. Then Yes. what? Priya, Amira is 4 years older than Priya age. Here we have the Priya age, that is X plus 2 years, and Amira is 4 years older. What we have to do here in order to get the Amira age? Zohaib? X minus 4. No, look at here. Please concentrate on the question. Amira is 4 years older than Priya age. And look at here. This is Priya age. And Amira is 4 years older. What should we do with the age of Priya? X plus 2 or bracket mein, and then Yes. we put 4. Plus 4, beta. Yes. X plus 2 years is the age of Priya, and Amira is 4 years older. Therefore, we have to add 4 in the age of Priya. Don't you see it? Once again, I repeat, look at here. Amira is 4 years older. But he says older than Priya. Now, this is the Priya's age. From this Priya's age, how can we get the Amira's age? Just we have to add 4 in this age because she is 4 years older. Understand? Yes, sir. Okay. Now, according to the assumption, age of Amira is X plus 2 plus 4 years. These are the assumptions, assuming the Shirley's age X years because she was youngest one. And then we get Priya age because she was 2 years older than Shirley, or Shirley was 2 years younger than Priya. Therefore, adding 2 years, 2 in the age of Shirley, we get the age of Priya. And then Amira is 4 years older than Priya. Then adding 4 in the age of Priya, we get the age of Amira. Next, fourth step is using the conditions to write the use given conditions to write the given information in equation form. Okay, how can we write the
these how can we write this data in equation form using the given condition? What was the given condition? Sum of ages is 47. 47. Understand, Hamna? Yes, sir. Sum of ages is 47. And here we have ages, age of Shirley, age of Priya, age of Amira. And some of these persons' ages is 47. So what will be the equation? Write corresponding mathematical equation. Corresponding mathematical equation: x plus 2 plus x plus 2 plus 4 is equal to 47. Up to now I repeat the steps. Here question was given to you. Amira is 4 years older than Priya and Shirley is 2 years younger than Priya. If the sum of their age is 47, find their respective ages. In the given question, two things are given to us. What two things? Basically, relations between the ages Amira, Priya and Shirley is given to us, and some of their ages also given to us. In this question, we observe that Shirley is the youngest one. Therefore, we assume the age of Shirley X years, and as Shirley is 2 years younger than Priya, therefore adding 2 in X, we will get the age of Priya. And it is also given that Amira is 4 years older than Priya. Therefore, we are going to add 4 in the age of Priya to get the age of Amira. What is the given condition? Sum of age is 47. Corresponding mathematical equation will be, if we add the ages of these three persons, x, x plus 2, x plus 2 plus 4, and it is equal to 47 because it is given. Everybody understands? Yes, sir. Up to this step, any questions, please? Any problem? Zohair? No, sir. एक्सक्यूज मी सर, Yes? ये जो एज ऑफ अमरा है इसमें x प्लस 2 प्लस 4 की जगह x प्लस 4 आ सकता था. No. Because Amra's age is related to the age of Priya. And according to our data, this is the age of Priya. एक केस में आ सकता था कासिम, अगर आप, मैंने शिरले की एज सपोज की थी ना, अगर आप प्रिया की एज एक्सपोज करते तब आ सकता था. फॉलो कर रहे हैं? अगर आप यहाँ प्रिया की Yes, एज, sir. अगर आप यहाँ Yes, प्रिया sir. की एज एक्स अज्यूम करें तो अमरा की एज आएगी एक्स प्लस 4 और शिरले की एज आएगी फिर एक्स माइनस 2. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? यस सर. देखिए, मैंने शिरले जो यंगेस्ट है उसकी एज सपोज की है, इसलिए फिर उस एज से, शिरले की एज से प्रिया की एज आएगी. अगर हम शिरले की एज में 2 ऐड करेंगे तो प्रिया की एज आएगी, क्योंकि आपको बताया हुआ उसने शिरले इज 2 years younger. शिरले इज 2 years younger देन प्रिया मीन्स के प्रिया इज 2 years older देन शिरले. यही मतलब हुआ ना इसका. अगर आप ये कहें कि शिरले 2 years younger देन प्रिया है, या फिर ये कह दें कि प्रिया इज 2 years older देन शिरले, एक ही बात है ना. अब आप बताएं कासिम, आपका और हमना का कितना फर्क है एज का? सर 1 साल का फर्क है. 1 साल का फर्क है. अब मैं 2 तरह से ये बात कहता हूँ. कासिम इज 1 year younger देन हमना और हमना इज 1 year older देन कासिम. What I am saying? I am saying the same thing. Once again, I repeat. Either I say Qasim is 1 year younger than Hamna, or I say Hamna is 1 year older than Qasim. Don't you think I am saying the same thing? Yes, sir. Okay. यस सर. यही बात यहाँ पे हो रही है. जब वो कह रहा था शिरले is 2 years younger than Priya, Shirley is 2 years younger than Priya. In fact, he is saying Priya is 2 years older than Shirley. तो हम मैथमेटिक्स में जहां एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन होता है तो आमतौर पे जो डाटा आपस में रिलेटेड होता है
उसमें जो सबसे छोटी चीज होती है उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने सबसे छोटा, मैंने पहले डाटा से कंफर्म किया है कि इनमें सबसे छोटी कौन है, वो मुझे पता चला शिरले है। तो जब मैंने शिरले की एज एक्स ईयर सपोज की, तो प्रिया की उसके अकॉर्डिंगली x+2 हो जाएगी, और प्रिया की एज जो है उसमें 4 ऐड करेंगे तो फिर वो आमिरा की एज आएगी। आई थिंक एवरीबडी दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. तो यस सर। कासिम पता चला Yes, जो sir. आप कासिम पता चला जो आप कह रहे थे कि x+4 किया जा सकता है, वो कब किया जा सकता है? यस सर। बताएं शाबाश, कब किया जा सकता है? इस वक्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कब किया जा सकता है? अगर x+4 करना हो तो फिर आपको क्या ज्यूम करना होगा? सर तो फिर हमें ये जो +2 है इसको हमें एक्स करना था, तो फिर यस वो x+4 हो यस यस शाबाश, x+2 को x करना था। इट मीन्स के फिर आपको प्रिया की एज सपोज करनी थी। मैंने जबकि शिरले की एज सपोज की x ईयर्स, तो आप फिर अज्यूम करते एज ऑफ प्रिया इज x, देन फिर वहां से एज ऑफ अमरा निकलती x+4, और वहां से एज ऑफ शिरले निकलती x-2। आंसर तब भी हमारे पास सही आता, सेम आता। चलें, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट, सम ऑफ एजेस दिया हुआ है, गिवन कंडीशन क्या है? सम ऑफ एजेस 47। तो फिर करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आएगी? इन तीनों को ऐड करेंगे हम, इन एजेस को, x+2 तो x+2 + 4 = 47। तो अब ये वाला बनेगा क्या सिंप्लीफिकेशन करते वक्त? दिस x प्लस दिस x प्लस दिस x, दिस इज 3x, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8. 3x + 8 = 47। Next, what is next step? Solve this mathematical equation. Now how can we solve? We Sir, take, +8 को right side पे ले जाएंगे. okay, 47 - 8. yes, okay, taking this 8 on the right hand side and writing here 47 - 8, this gives you 3x = 39, and then 39/3. yes, 39/3. This 3 will cancel 39 by 13 times. 3 1s are 3 Yes. and 3 3s are 9. Therefore x is equal to 13. What was Shirley x? age is 13. Shabash, x was Shirley's age. Therefore you have calculated Shirley's age, and you can And now Priya age is 15. Priya's age is 15, because here you can write x+2, that will give you 13 + 2 And 15 years. And then Amira age is 19. and Amira's age is, yeah, Mira age is 19 years. Okay. Yes. Age of Amira x+6, that is 13 + 6 years, 19 years. Age of Priya x+2, 13 + 2 mean 15 years. And age of Shirley x, that is 13 years. 13 years. Yes. Okay. Any questions regarding this question, please? नो No, sir. सर। Okay, thank you. Next question. The sum of two numbers, one of which is 2/3 of the other, is 45. Find the smaller number. Up one by one, please explain the question. Once again, I repeat, the sum of two numbers, we don't know about the numbers, but the relation among them is given to us, one of which is 2/3 of the other. एक नंबर दूसरे नंबर का 2/3 है, और उनका सम क्या है? 45. फाइंड द स्मॉलर नंबर. कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो पहले क्वेश्चन डिस्कस करे। करना क्या है, क्या दिया क्या और करना क्या है, वही प्रॉब्लम जो मैं स्टेप्स के कहता हूं कि सबसे पहले तो आप डिस्टिंग्विश करें कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. Jeb, can you tell me? Jeb, are you there? Okay, Hamna, please you tell me.
Sir, the sum of two numbers is given Yes. and we have to find the smallest number. Okay. It means one. अब आप मुझे ये बताएं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। हम क्या करें, अब कैसे करें ना, अब आप मुझे करके दिखाएं ना, आप लोग जरा क्या अज्यूम करेंगे इसमें। अजहेब आप नहीं बता रहे कुछ। Sir, can I tell? यस। Sir, we will find the 2/3 of 45. No. Why you are finding 2/3 of 45? Look at 2/3 of the number है जो दो, which two numbers you have to find. 2/3 is one of those numbers, but 45 is the sum of those numbers. How can you find the 2/3 of sum of numbers, because it is not given to you? Zohaib, where are you? Yes, sir. Where are you? Do you follow Sir, the call आ गई। अच्छा, do you follow the question? Yes, sir. तो बताओ फिर क्या कर सकते हैं इसका। उसने दो चीजें बताई हैं, जरा गौर कीजिएगा। सम ऑफ टू नंबर्स, ये देखें, ये जरा गौर करें सब लोग। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। बेसिकली ये है क्वेश्चन, ये है। मैं इसको स्किप कर देता हूँ बीच में से। सर, टू नंबर्स हम ले लेंगे x एंड y। एक मिनट ठहरो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट ठहरें। ये मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं दो कॉमों के दरमियान जो चीज है। आप जब क्वेश्चन पढ़ें इसको छोड़ दें, एक्चुअल क्या है ये जरा गौर कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, ये है। कासिम, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये एक्चुअली ये कॉमे। सेकंड नंबर इज 2/3। हाँ, एक मिनट, मैं आप जरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं ना, क्वेश्चन समझ पढ़ना कैसे है। उसने कहा था सम ऑफ टू नंबर्स, आगे उन नंबर्स की डिटेल बताई है उसने। ये जो मैंने रेक्टेंगल में चीज डाली है ना, ये वाली व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, बट इट इज गिवन दैट द सम ऑफ नंबर्स इज 45। इट इज गिवन। एक चीज तो ये होगी, जो भी दो नंबर आपने फाइंड करने हैं उनका सम जो है वो 45। अब आ गया कि उनके दरमियान रिलेशन क्या है। वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर। उनमें से जो एक नंबर है दूसरे नंबर का 2/3 है। तो हम बेटा बड़ी आसानी से सिर्फ एक काम कर लें, अगर कि एक नंबर एक्स सपोज कर। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम्स। डिस्टिंग्विश वांटेड रिजल्ट्स फ्रॉम द गिवन वंस। वो तो अब डिस्टिंग्विश हो गया ना, कि गिवन नंबर्स हैं उनका रिलेशंस दिया हुआ है, नंबर हमने फाइंड करने हैं, नंबर के दरमियान रिलेशंस जो है वो गिवन है, सम ऑफ नंबर्स भी गिवन है, और नंबर वी हैव टू फाइंड द नंबर, स्मॉलर नंबर। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन राइट द गिवन डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अच्छा, अब इसकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो है, आप देख रहे हैं कि डिफरेंट क्वेश्चंस की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द गिवन डाटा। Here, what information is given to us? According to that information, we just assume one number. एक नंबर हमने एक्सपोज कर लिया। हम ना आप ये बताएं कि जो गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन व्हाट शुड बी द सेकंड नंबर। सर, कैन आई टेल? लेट हमना Sir, can टेल you फर्स्ट। repeat the question? We have to find a smaller number, and the relation between two numbers is given to us. What is the relation? One of which is 2/3 of the other. We have just assumed one number x. As you know, in the applications of the problems, applied problems, we assume unknown thing, and then we make the mathematical equation, and then we solve the mathematical equation, and then we get the result. Following these steps, we have assumed one number x. Can you tell me what will be the second number? Look at the information. 2/3x। Yes, ये कौन बता रहा है? सर, जोहेब। ज़ुहैब बता रहा है। हमने आपसे पूछा था
सर मुझे क्वेश्चन अच्छा नहीं समझ आया। अच्छा देखो, अब मेरा ख्याल आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हो, मैं रिपीट करता हूँ। ये देखें, उसने कहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। दो नंबर्स हैं जो उनका सम 45 है। उन नंबर्स के दरमियान रिलेशन क्या दिया हुआ है? एक नंबर दूसरे नंबर का 2/3 है, यही है ना? वन ऑफ विच इज, ये वन ऑफ विच जो कह रहा है ना, ही इज टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। उन टू नंबर में से एक नंबर जो है दैट इज 2/3 ऑफ अदर। अब एक नंबर तो मैंने अज्यूम कर लिया, तो मुझे अब ये बताएं कि सेकंड नंबर क्या होगा। हम ना, चले कासिम आप पहले बताएं, फिर हमना से पूछते हैं। यस सर। आप बताएं भाई। सर अब एक समझ आ गई। आ गई, चलो बताओ। बताऊं हम मैं? बताओ बताओ हमना। 2/3x। यस, कासिम आप भी कहना चाह रहे थे कुछ, आप बताएं अब। चलें, एनी हो, सेकंड नंबर इज 2/3x। देखें अब मैं वो लिख रहा हूं, अदर नंबर क्या है? 2/3 ऑफ द नंबर x, एंड दैट इज 2/3x। नेक्स्ट स्टेप, यूज द गिवन कंडीशंस टू राइट द गिवन इंफॉर्मेशन इन एन इक्वेशन फॉर्म। भाई अब गिवन कंडीशन क्या है बताऊं मैं, या आप बताएंगे? गिवन कंडीशन को बताएगा कोई आप में से इस सारे क्वेश्चन में? एक कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है, देयर वर टू कंडीशंस। सर 45। नहीं 45 अकेला नहीं है, सुनो जरा। दो कंडीशन में सर से एक हमने, 2/3 हाँ है नहीं, एक मिनट सुनो ना, एक मिनट मेरी बात सुनो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में टू कंडीशंस दी हुई थी, एक कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है। व्हाट वाज दैट कंडीशन? वन नंबर इज 2/3 ऑफ द सेकंड। हमने वन नंबर एक्सपोज किया और उसका दूसरा नंबर जो है वो 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर हो गया। ये कहां से आया? ये इस कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से। क्लियर होगी बात? एक कंडीशन और भी है, व्हाट इज दैट? सम ऑफ दीज टू नंबर इज 45। इस कंडीशन के मुताबिक क्या होगा बेटा? एक नंबर आपका ये है, एक नंबर आपका ये निकला है। इस कंडीशन को यूज करते हुए यस सर। तो क्या वो आपको इन दोनों नंबर्स का ऐड करना नहीं आ रहा, सम नहीं फाइंड करना आ रहा? सर 2x/3। नहीं 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 भाई, एक x है, दूसरा नंबर क्या है? 2/3x है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये गिवन कंडीशन ये होगी, सम ऑफ नंबर इज 45। इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 45। नहीं समझ आई? यस सर। यस सर। हम ना, यस सर मैं कर रही हूँ। नहीं ये स्टेप समझ आया? यस सर। सर मैंने इक्वेशन बना के मैं उसे सॉल्व कर रही हूँ अब। नहीं नहीं, वो आप खुद ना करो। अगर आप खुद कर भी रही हैं तो मुझे आंसर्स दें ना आप क्वेश्चंस के। अगर आप मुझे आंसर नहीं दे रहे तो मैं समझ रहा हूँ कि फिर आपको नहीं पता चल रहा। ठीक है, यस सर ये समझ आ गई है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? कासिम, यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके, अब आप इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता है ना आपको? ये x/1 है, ठीक है? तो ये 3x प्लस 2x/3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 3x प्लस, ये पता चला ये स्टेप? यस ये सर। x प्लस 2/3x से ये स्टेप कैसे आया, ये पता चल गया सबको? ये x के नीचे 1 है ना, यस। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यस तो ये बन जाएगा 3x। सर। डिनोमिनेटर में दोनों के 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस 2x/3। हमने आपको समझ आई? ये x है यहाँ पे, यस सर। तो चूंकि डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है तो हमें इस x को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3x।
तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 45. 3x plus 2x, 5x over 5x/3. In the next step, this 3, we take this 3 on the right hand side. तो और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. yes 45 को डिवाइड करेगा. 5 9s are 45 and 3 9s are x 27. value is 27 27. अब मैंने आपसे पूछना है कि एक नंबर हमारा है x, ये वाला, और दूसरा नंबर हमारा है 2/3x. इन दोनों में से हमने कौन सा नंबर मालूम करना है? स्मॉलर नंबर. smaller number अब आप मुझे 1 by 1 बताएं कि x और x स्मॉलर है या 2/3x स्मॉलर है? sir x smaller जी, x आपने बड़ी जल्दी कह दिया स्मॉलर, कोई सोचे समझे बगैर. अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, हम ना आप बताएं कौन सा नंबर स्मॉलर है, x स्मॉलर है या 2/3x स्मॉलर? रीजन भी बतानी है साथ. 2/3x. Why? Your answer is correct, but why? सर पता नहीं. अच्छा, मैं बताता हूँ. मुझे ये बताएं सब लोग, आप अच्छे तीनों बच्चे सोचें कि 1 छोटा है या 2/3 छोटा है? sir 2/3 हैं जी? अच्छा चलें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा. अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हो 1, चले मैं अब मैं कोशिश करके लिख लेता हूँ 1. एक मिनट जरा. अच्छा, मैंने ये लिख लिया जी. ये फर्ज करें ये 1 है. ये रेड लाइन जो मैंने डाली है ना, ये समझे 1 है. मुझे ये बताएं ये 1 छोटा है या 2/3 छोटा है? सिर्फ 2/3. अच्छा, अगर नहीं पता चल रहा तो जल्दी से कैलकुलेटर यूज कर लें जरा. पास ही है कहीं पड़ा हुआ कैलकुलेटर या मोबाइल? अच्छा, मुझे बताना पड़ेगा अब आपको कि इनमें से 1 में से 1 छोटा है या. अच्छा, एक और चीज पूछ लेता हूं मैं, चलिए मुझे आप बताएं 2/3 छोटा है या 2/2 छोटा है? 2/2. Yeah, 2/2. sir 2 by 2/2 2/2 छोटा है और 2/3 बड़ा है, ये कह रहे हैं आप? yes sir हम ना आप Yes, बताएं, sir. हम ना आप बताएं. यस सर 2/2 छोटा है. अच्छा चलिए, मैं अब आपको ये एक मिनट, ये फिर मैं यहाँ से इसको अच्छा बच्चों देखो, हम बात कर रहे थे कि 2/3 बड़ा है या 2/2 बड़ा है, यही बात कर रहे थे ना हम. आवाज yes sir हाँ, अब देखिए कि अच्छा एक बात तो ये है कि अब शायद ये टाइम मीटिंग स्टॉप ऑटोमेटिकली हो जाएगी. अगर हो गई तो दोबारा आपने कुछ टाइम के बाद मैं मैसेज करूंगा, फिर दोबारा ज्वाइन करना आपने. अच्छा, अब ये देखते हैं, इसको समझाने के लिए मैं जरा आपको एक ये रिलेशन लिखना चाह रहा हूँ और अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये मैंने लिखा है 2/2. नजर आ रहा है बेटा? sir no विजिबल नहीं है? no No, sir, बस एक ब्लैक बॉक्स दिख रहा है. अच्छा चले, मैं अभी देखता हूँ, मैं अभी आपको विजिबल कराता हूँ. जी, अब नजर आया है? ये नजर आ रहा है? Yes, sir.
अच्छा, अब मैंने कंपैरिजन आपसे करवा रहा हूँ कि 2/2 बड़ा है, ये है, मैं ये समझ आ रही है, मैं सेपरेट कर देता हूँ। इसमें बताएं 2/2 बड़ा है या 2/3 बड़ा है, बताएं भाई, अब बताएं। 2/2। 2/2। अच्छा, 2/2 सर को बड़ा क्यों 2/2 कह रहे हैं आप? सर क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो बेटा जब डिनोमिनेटर नहीं, आप 2/2 को बड़ा कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं 2/2 को। जोहेब आप क्या कह रहे हैं? नो जोहेब सर, कहना सर छोटा। 2/2 को छोटा कह रहे हैं, हमना और कासिम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो नंबर बड़ा हो जाता है। ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो बड़ा हो जाता है। और ये जो है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ये नंबर छोटा होगा। तो 2/2 बड़ा है और 2/3 छोटा है। अब 2/2 बराबर किसके है, बताएं मुझे। सर x के। नहीं, 2/2 एक्स के पर इक्वल नहीं है, 2/2 1 के इक्वल है। यस सर। 2/2 जो है 1 के इक्वल है। फिर एक दफा फिर देख लें कि चूंकि 2/2 का डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए 2/2 नंबर बजाते खुद बड़ा होगा। एंड 2/3 का डिनोमिनेटर 3 जो है वो बड़ा है, तो 2/3 नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा। अब इस कंपैरिजन किस किस का आ गया? बेसिकली अब आपके सामने एक चीज आ गई है कि वी हैव नंबर 1 एंड वी हैव नंबर 2, 2 और 3। विच वन इज अ बिगर वन, विच वन इज अ स्मॉलर वन? सर 2/3 छोटा 2/3x। होगा और 2/2 2/3 बड़ा होगा। 2/3 छोटा है और 2/2 जो कि 1 के बराबर है वो बड़ा है। वो तो बड़ा। यस सर। तो फिर अब इसमें से बताएं ना मुझे, x और 2/3 x में से कौन सा छोटा है? 2/3x। 2/3 2/3 x। तो विच नंबर वी हैव टू फाइंड? सर स्मॉलेस्ट। Smaller स्मॉल। means we have to find 2/3 x। मुझे पता चला है। यस सर। तो हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, जो आप कंफ्यूज कर रहे थे। x स्मॉलर नहीं है, x लार्जर नंबर है, 2/3 x जो है वो स्मॉलर है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। हमने x की वैल्यू 27 फाइंड कर ली थी, बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड वैल्यू। वी हैव टू फाइंड स्मॉलर नंबर विच इज 2/3 x। therefore 2/3 into 27, because the value found of x is 27. Therefore we multiply 27 by 2/3 and we get answer 18. Is it clear? Yes, 18. This Yes 18, sir. this 18 is the required smaller number. Smaller number. Yes sir. Okay, next we are going to solve the next question. If a number is tripled, triple means 3 times. 3 three times. three times, shabash. If a number is tripled, it gives us same result as when 28 is added to it. Find the number. वो कहता है अगर एक नंबर को ट्रिपल कर दिया जाए तो उसका वही रिजल्ट होता है अगर जो उसमें 28 ऐड करके आता है। तो नंबर मालूम करें। अब ये क्विकली मुझे बताएं कि क्या करेंगे हम। सबसे पहले सर क्या करेंगे? 28 को 3 से डिवाइड। नहीं बेटा, इस Yes तरह sir. नहीं, इस तरह नहीं वर्किंग होती ना, इस तरह नहीं होती। वही स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, आप नंबर सपोज करेंगे एक्स। ठीक है, पहला स्टेप क्या Yes होगा? sir. पहला स्टेप क्या होगा? लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर आपने सपोज कर लिया एक्स। फिर उसकी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसका ट्रिपल नंबर क्या होगा? 3x। और फिर क्या होता है? रिजल्ट्स दोनों सेम कब आते हैं? 3x किसके इक्वल है? x प्लस 3x. 20। Sir 3x plus x. 4x is equals 28. नहीं बेटा, 3 ये नहीं ना कह रहा वो, ये तो कह ही नहीं रहा वो। नंबर इज ट्रिपल्ड, इट गिव्स अ सेम रिजल्ट व्हेन एडेड 28। जब आप नंबर को ट्रिपल करें तो वो वही रिजल्ट देता है जब उसको 28 ऐड करके आ जाए। आप नंबर अगर एक्स सपोज करें, उसको उसमें 28 ऐड करें तो क्या आएगा? x प्लस 28। 28. और नंबर का ट्रिपलेट क्या है? 3x। तो 3x. ये 3x ट्रिपल्ड, तो ये दोनों रिजल्ट सेम है।
सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेप्स में सबसे पहला काम जो है, वो जो स्टेप्स हैं वो तो मैं बार बार आपको लिख रहा हूँ, आपने तो नहीं लिखने। रिक्वायर्ड नंबर हम सपोज करते हैं x, Yes, sir. इसका गिवन कंडीशन के मुताबिक नंबर ट्रिपल्ड में क्या आ जाएगा बताएं जरा। ये Yes. गिवन कंडीशन ये है, जरा गौर करें। हमने अज्यूम किया रिक्वायर्ड नंबर x, गिवन कंडीशन क्या है, नंबर ट्रिपल्ड। ये कहा था ना, नंबर इज ट्रिपल्ड इज इक्वल टू द नंबर प्लस 28। यहां तक समझ आ गई सबको? यहां तक समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. एक्स आपने नंबर एज्यूम किया हुआ है, गिवन कंडीशन ये है कि नंबर ट्रिपल इज इक्वल टू नंबर प्लस 28। तो मैथमेटिकल इक्वेशन फिर क्या बनेगी, एक्स को ट्रिपल करेंगे तो 3x आएगा, और यहां क्या आएगा, x प्लस X 28। plus 28. ये सबको समझ आई? रिक्वायर्ड Yes, नंबर, sir. रिक्वायर्ड Yes, नंबर एक्स sir. आपने एज्यूम किया, और गिवन कंडीशन ये है नंबर ट्रिपल्ड इज इक्वल टू नंबर प्लस 28। ये था क्वेश्चन। इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, जो यहाँ पे किया, इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन 28 इज एडेड टू इट। 28 एडेड टू इट, वो ये किया, नंबर ट्रिपल्ड ये किया, 28 एडेड टू नंबर ये किया, और सेम रिजल्ट का मतलब है दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं आप? बोलते नहीं ना, बोला भी करें साथ साथ। इफ अ नंबर इज Yes, sir. इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, आपने नंबर ट्रिपल कर दिया, एंड व्हेन एडेड 28 टू इट, वो आपने नंबर में 28 ऐड कर दिया, फिर वो कह रहा है कि सेम रिजल्ट है। तो सेम रिजल्ट का मतलब है कि भाई दोनों बराबर होंगे। अब नंबर चूंकि आपने अज्यूम जो किया हुआ है वो x किया हुआ है, नंबर आपका x है, तो ट्रिपल नंबर जो हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 28 आ जाएगा। तो ये आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग इसकी कर ली, आपने गिवन डाटा से मैथमेटिकल इक्वेशन लिख ली है। अब आगे सॉल्व करना तो कोई काम ही नहीं है ना। वो आ जाएगा आपके पास 3x माइनस एक्स इक्वल 28, 2x इक्वल टू 28 एंड x इक्वल टू 28 ओवर 2। This gives you x is equal to 14. This is the required number. Any questions, please? No, sir. No. Okay. Next question. This is a typical question, and I wish to ask. I wish to ask points from you. A travel agency is planning for a holiday for a group of people. एक ट्रेवल एजेंसी है जो हॉलीडे ट्रिप के लिए ग्रुप कुछ लोगों को लिए हॉलीडे के लिए ट्रिप के लिए प्लान कर रही है। द एजेंसी रिसीव्स कोटेशंस फ्रॉम 2 कोच कंपनीज। कोटेशन का क्या मतलब होता है? कोच कंपनीज हैं, जाहिर बात है जो एजेंसी है उसने जो कोचेस हायर करनी है उनसे उसने कोटेशंस। जी क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। अ ट्रैवल एजेंसी इज प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ट्रैवल एजेंसी है वो हॉलीडे ट्रिप के लिए कुछ लोगों के लिए कुछ प्लान कर रही है। द एजेंसी रिसीव्स कोटेशंस फ्रॉम 2 कोच कंपनीज, मेया एक्सप्रेस एंड ग्रेट हॉलीडेज। कोटेशन से क्या मुराद होती है? कोटेशंस का क्या मतलब है, बता सकता है आप में से कोई? कोटेशंस, ज़हेब, डू यू नो अबाउट दिस? No, sir. ओके, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। जब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब किसी कोई काम करवाते हैं तो कंपनीज जो काम करती हैं उनको जब हायर करते हैं तो फिर उनसे ये पहले तय होता है ना कि कितने पैसों में करेंगे। जैसे फर्ज करें अगर हम घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन में हम 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से पूछेंगे कि जी आप बताएं कि आप क्या क्या हमें करके देंगे और कितने पैसे लेंगे। इसको हम फिर इसकी जो डिटेल होती है वो सबमिट करवाते हैं, अब लिख के, वो कोटेशन कहलाती है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रैवल एजेंसी जो है वो प्लान कर रही है हॉलीडे ट्रिप के लिए, तो उसमें वो जिन कोचेस के जरिए उसने हॉलीडे ट्रिप लगवाना है पीपल को, वो उनसे कोटेशंस पूछ रही है कि Okay, जी sir. ठीक है ना, ये समझ आ रही है?
अब वो कोटेशन देखें Yes. क्या, वो कोटेशन देखें क्या आती है। जो कोच कंपनीज टू हैं उनका नाम उसने बताया हुआ है कि दोज आर द कोच कंपनीज, मेया एक्सप्रेस एंड ग्रेट हॉलीडेज, ये उनके नाम हैं कोच कंपनीज के। नाउ व्हाट दे ऑफर, मेया एक्सप्रेस चार्जेस $15 फॉर ईच पर्सन। जो मेया एक्सप्रेस है वो हर पर्सन के लिए जो चार्ज करती है वो $15, एक पर्सन के लिए $15। मेया एक्सप्रेस चार्जेस $15 फॉर ईच पर्सन, एंड while Great Holidays charges a fixed amount of $84 and an extra of $12 per person। क्वेश्चन समझ आ गया? ट्रेवल एजेंसी Yes, sir. जी ट्रेवल एजेंसी है, वो हॉलीडे ट्रिप लोगों के लिए हॉलीडे ट्रिप के लिए प्लान कर रही है। एजेंसी ने 2 कोटेशंस रिसीव की हैं कोच कंपनी से, एक मेया एक्सप्रेस है और दूसरी ग्रेट हॉलीडेज है। मेया एक्सप्रेस जो है वो एक पर्सन के $15 चार्ज करेगी, और जो ग्रेट हॉलीडेज है वो क्या करेगी, एक पर्सन के $84 और सॉरी फिक्स अमाउंट, ये फिक्स अमाउंट $84 वो चार्ज लाजमी करेगी, और $12 पर पर्सन भी चार्ज करेगी। मेया एक्सप्रेस और ग्रेट हॉलीडेज एक्सप्रेस में डिफरेंस है। जो मेया एक्सप्रेस है वो पर्सन के हिसाब से $15 चार्ज करती है, लेकिन जो ग्रेट हॉलीडेज है वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी, फिक्स चार्जेस भी ले रही है $84, और $12 जो है वो पर पर्सन चार्ज करती है। ये उसके पर पर्सन चार्जेस तो कम है, लेकिन फिक्स चार्जेस जो हैं वो उसने लेने हैं। यहाँ तक तो क्वेश्चन है। अगर हम ना आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बताएं, ताकि मैं इसके फिर आगे सोल्यूशन की तरफ चलूं। सर क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन ये है कि ट्रेवल एजेंसी प्लान कर रही है एक ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रिप लगवाने के लिए। ये देखें ना, यहाँ मैं एक इसको एक्सप्लेन करता हूँ जरा थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ। ट्रेवल एजेंसी इज प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे फॉर अ ग्रुप पीपल। एक 1 डे ट्रिप के लिए एक ट्रेवल एजेंसी जो है वो प्लान कर रही है। द एजेंसी रिसीव्स कोटेशंस फ्रॉम 2 कंपनीज, 2 कोच कंपनीज। तो जो लोगों को उसने ट्रिप लगवाना है वो कोचेस के जरिए लगवाएगी ना, तो कोचेस से उसने 2 कोच कंपनी से उसने कोटेशंस मांगी हैं। कोटेशंस से मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कोटेशन से क्या मुराद होती है आपको पता है? कोटेशन से क्या मुराद है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोटेशंस? ये जैसे आपने अभी, आप भी कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से गुजरे हैं, तो जब आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जिन लोगों से करवाना चाहते हैं उनसे 2-3 लोगों से, कॉन्ट्रैक्टर से आप पूछते हैं ना कि भाई कितने पैसे लेंगे आप, तो वो सारा Yes, कॉन्ट्रैक्ट, sir. हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आता है उससे फिर आप देखते हैं कि मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्टर जो है सूट करेगा। तो इसी तरह 2 कंपनीज हैं जिनके कोचेज के जरिए उसने जाना है। वो एक है मेया एक्सप्रेस, उसका नाम है, दूसरी कोच कंपनी का नाम है ग्रेट हॉलीडेज। अब मेया ने अपना पैकेज बताया है। मेया ये कह रही है, मेया कोच एक्सप्रेस कह रही है कि मैं पर पर्सन $15 चार्ज करूंगी। बात फॉलो कर रहे हैं? ट्रेवल एजेंसी ने पर्सन Yes, को sir. लेके, ट्रेवल एजेंसी ने पर्सन को लेके जाना है ना, तो जिस कोच कंपनी के जरिए उसने लेके जाना है उनमें से एक कोच कंपनी जो मेया कोच कंपनी है वो कह रही है कि मैं तो पर पर्सन $15 चार्ज करूंगी। और ग्रेट हॉलीडेज जो है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट जो है $84 जरूर लूंगी, और दूसरा एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे $12 पर पर्सन। ये है क्वेश्चन। फिर एक्सप्लेन करूं। ट्रेवल एजेंसी ने जिन 2 कोच कंपनीज के जरिए पीपल को ट्रिप लगवाना है, उन कोच कंपनी के पैकेजेस क्या हैं? पहली कोच कंपनी कहती है मैं पर पर्सन 15, मसलन फर्ज करें आप अगर 10% जाते हैं तो उसने कितने चार्ज करने हैं? $15 पर पर्सन को 10 से मल्टीप्लाई करा दें, $150 वो चार्ज करेगी। सर $150। 150। जो दूसरी कंपनी है ना वो कहती है $84 तो मैंने लेने ही लेने हैं, चाहे आपका 1% जाएगी। देख रहे हैं आप वो क्या कह रहा है? ग्रेट हॉलीडेज चार्जेस अ फिक्स्ड अमाउंट $84, चाहे पर्सन एक जाए उसने $84 ले लेने हैं। उसके बाद पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्जेस हैं $12 पर पर्सन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कोटेशंस ऑफ द कोचेस।
अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलें अब आगे चलते हैं, Yes, अब sir. आगे चलते हैं। कहता क्या है, करना क्या है? इफ द टोटल अमाउंट चार्ज बाय ईच कंपनी इज द सेम, वो कह रहा है चाहे मेया कोच कंपनी से जाए, चाहे आप दूसरी जो हॉलीडेज चार्जेस वाली जो कंपनी है, ग्रेट हॉलीडेज वाली जो है, उन दोनों उस कंपनी से जाएं तो टोटल अमाउंट सेम रहती है। इतने पर्सन्स गए हैं, ये आप क्वेश्चन समझ लें, अभी हमें पर्सन्स का नहीं पता। इतने पर्सन्स गए हैं कि अगर वो मेया से जाएं, लेके जाएं, मेया कोच से लेके जाएं या ग्रेट हॉलीडे से लेके जाएं, टोटल अमाउंट दोनों की सेम रहती है, जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है। हालांकि यहाँ सेम नहीं है, ये देखें जरा, ये चार्ज कर रही है $15 पर पर्सन, ये चार्ज कर रही है $84 फिक्स अमाउंट एंड $12 पर पर्सन। लेकिन वो कहता है कि पर्सन इतने हैं कि दोनों की कोच कंपनीज की चार्जेस जो हैं वो सेम है। अच्छा अब देखें, कहता है इफ द टोटल अमाउंट चार्ज्ड बाय ईच कंपनी इज द सेम, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे। आप ये पता करें कि हॉलीडे में जो हमारे पास जो ग्रेट हॉलीडे वाली थी, उस यानी हॉलीडे पे जो ट्रिप पे लोग गए, कितने गए? क्वेश्चन समझ आ गया? अब जरा चलते हैं, अभी देखें तो बड़ा मिक्स हुआ हुआ सारा कुछ, तो लग रहा है पता नहीं क्या होना है। आपने जो पहला स्टेप आपका क्या करेंगे जरा बताइएगा, क्या चीज गिवन और क्या फाइंड करनी है? गिवन जो दो कोच कंपनीज हैं उनके चार्जेस हैं, और एक कंडीशन ये चार्ज गिवन है, दूसरी कंडीशन जो है उन दोनों कंपनीज के चार्जेस की रिलेशन है। यानी जितने पर्सन्स गए हैं वो चाहे कोच मेया से जाएं चाहे कोच ग्रेट हॉलीडे से जाएं, दोनों के चार्जेस सेम है, ये दूसरी कंडीशन है। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे। तो पहला स्टेप आप में से कोई बताए क्या होगा सोल्यूशन का? मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि जो चीज आपने वर्ड प्रॉब्लम में फाइंड करनी है बेटा, वो सपोज करें, वो अज्यूम करें। क्या फाइंड करना है? Sir, number of people is equals to X. यस, आप क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे इज इक्वल टू X। हम ना Yes. फॉलोस, Maya, Yes, sir. मैंने बार बार आपको बताया है कि वो स्टेप्स भी बार बार लिख के दिखाए हैं कि जो चीज आपने मालूम करनी है वो अज्यूम करें। आपने मालूम करना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे। आप वो सपोज करें ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे X। इसके आगे सारी की सारी कंडीशन यहाँ से क्वेश्चन से आती जाएगी। वो देखें सबसे, Maya charges. हाँ Maya अभी charges equals to एक मिनट $15. एक मिनट, पहले सबसे पहला काम ये था। अब जरा देखें इससे पर पर्सन चार्जेस व माया एक्सप्रेस, शाबाश, बताएं क्या था, $15. कितने हैं? $15. इज $15. इक्वल टू $15। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट चार्ज बाय द मेया एक्सप्रेस, $15 X. शाबाश। कैसे? आपने, आपको पता ही नहीं है कितने लोग गए हैं, तो आपने वो अज्यूम कर लिया वो X है। एक पर्सन के चार्जेस जो हैं मेया एक्सप्रेस के कितने हैं? $15। और X पर्सन के कितने हो जाएंगे? 15 इंटू X डॉलर, 15X। हम ना Yes, sir. जस्ट लाइक यू टोल्ड $150, वही हुआ ना? अगर 10 पर्सन गए होते तो कितने होते थे? $150 होने थे। किस तरह आए थे? 15 को 10 से मल्टीप्लाई करा के। अब चूंकि आपको Yes. अब आपको चूंकि मालूम नहीं है कितने लोग हैं, वो X हैं, तो क्या आ जाएगा? $15 इंटू X, टोटल अमाउंट चार्ज बाई मेया एक्सप्रेस। ये जो 3 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, इन 3 स्टेप्स में अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताए। No, sir. कासिम, Yes, sir. हैव यू एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, नेक्स्ट, पर पर्सन चार्जेस बाई ग्रेट हॉलीडेज, वो कितने हैं जी? Sir, $84. नो 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 नो, $12. $96. Yes, Yeah. $96. ना 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 भाई, 96 कैसे हो गए? $12. सिर्फ 12 पर पर्सन, $12 है। Yes, देखिए sir. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो ना, वो तो 84 तो कुछ और है। ये देखें, ये कहता है ग्रेट हॉलीडेज चार्जेस $12
और पर पर्सन, ठीक है। वो चीज जो वो लहदा है उसको हम बाद में देखते हैं। तो अभी तो मैंने जो डाटा लिख रहा हूं वो कौन सा लिख रहा हूं, अभी तो मैं लिख रहा हूं पर पर्सन चार्जेस बाय ग्रेट हॉलीडेज, दैट इज $12। क्लियर? Yes, Is it? sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Next step. Charges of X persons by great holidays क्या हो जाएगा? $12 into X. $12 X. ठीक हो गया। नेक्स्ट, फिक्स्ड अमाउंट चार्ज बाय द ग्रेट हॉलीडेज, ये कितनी है? $84. $84। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट चार्ज बाय द ग्रेट हॉलीडेज, यही फाइंड करनी है ना हमने? नहीं, ये नहीं फाइंड करनी, हमने तो फाइंड नंबर ऑफ पीपल करने हैं। मुझे ये बताएं Yes. टोटल अमाउंट चार्ज बाय ग्रेट हॉलीडेज कितनी हो जाएगी? भाई बिल्कुल क्लियर है, डाटा सामने है आपके। जो पर पर्सन, $94. जी जी, क्या क्या? $96. नहीं बेटा, 96 कैसे हो जाएंगे? देखें, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, यही है ना। पर पर्सन चार्जेस $12 थे और एक्स पर्सन के कितने आ गए? $12 एक्स, 12 into X, और फिक्स अमाउंट कितनी आ गई? ये टोटल किस तरह आएगी? किन किन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगी? इसको और इसको। हम ना सर 96x। 96 नहीं आएगा ना, ये आएगा भाई। इस 96 कैसे आएगा? 96 नहीं आएगा। एक आपने ये ऐड करना है 12x और एक 84, 96 कैसे हो जाएगा? अगर 12 और 84 होता ना, एक पर्सन होता ना, तो फिर आना था 96। मैं एक्सप्लेन करूं आपको। अगर एक पर्सन गया होता तो एक पर्सन के $12 और फिक्स अमाउंट $84, टोटल कितने हो जाते? 96, जो आप बार बार कह रहे हैं। लेकिन एक पर्सन तो गया नहीं हुआ, कितने पर्सन गए हुए हैं? Group कितने of पर्सन हैं people. जी? Group एक्स of पीपल, people. एक्स पीपल गए हुए ना, ये गए हुए ना। तो एक्स पीपल की अमाउंट कितनी है? $12x, $12. और इसको X. ऐड करेंगे ना 84 में, Yes, sir. तो फिर आपके पास द अमाउंट चार्ज बाय द ग्रेट हॉलीडेज क्या आएगी? 84 प्लस 12x। क्या ये 96 हो जाएंगे? कासिम No. बताएं, ये ऐड हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते। वाई? ड्यू टू दिस x we Yes, cannot sir. we cannot add these two, but this is the amount charged by the great holidays. Next, given condition क्या है? हाँ जी, गिवन कंडीशन बताएं जरा, क्या थी? देखें जरा क्या थी। ये मैं Sir, बता, charges. चार्जेस सेम है, ये कहा ना उसने। ये देखो, Yes. इफ द टोटल अमाउंट चार्ज बाय ईच कंपनी इज द सेम, ग्रेट हॉलीडेज की टोटल अमाउंट क्या आई है? ये। और मेया एक्सप्रेस की जो है वो बताएं जरा, मेया एक्सप्रेस की कितनी टोटल अमाउंट थी? ये है सामने आपके, बोल ही नहीं रहा आप में से कोई। ये देखो आपके सामने डाटा लिखा हुआ सारा, ये सारा डाटा आपको विजिबल नहीं है? ये देखें आप, नजर आ रहा है ना? मेया एक्सप्रेस की टोटल अमाउंट ये है, और टोटल अमाउंट ग्रेट हॉलीडेज की ये है, और कंडीशन क्या है? दोनों अमाउंट्स क्या हैं? सेम है। तो फिर हमें क्या लिखना होगा? गिवन कंडीशन, अमाउंट चार्ज बाय द मेया एक्सप्रेस इज इक्वल टू अमाउंट चार्ज बाय ग्रेट हॉलीडेज। Yes, sir. मैथमेटिकल इक्वेशन क्या फिर बनेगी? मेया एक्सप्रेस की अमाउंट क्या है? 15x, और इसकी अमाउंट क्या है? 84 प्लस 12x। Yes, sir. देखें भाई, मैं रिपीट करता हूं क्विकली। मैंने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज किया। मेया एक्सप्रेस पर पर्सन की जो चार्जेस थे वो $15 थे, एक्स पर्सन के हो गए 15x, और हॉलीडेज के चार्जेस पर पर्सन 12 थे, एक्स पर्सन के हो गए 12x, और हॉलीडेज के फिक्स चार्जेस भी $84 हैं। इसलिए हॉलीडेज की टोटल अमाउंट हो जाएगी $84
प्लस 12x। इसी तरह मे एक्स की टोटल अमाउंट यहाँ पे 15x है। गिवन कंडीशन ये है कि दोनों के चार्जेस टोटल जो हैं वो फिक्स रहते हैं, बराबर इक्वल रहते हैं, लिहाजा अमाउंट चार्ज बाय मे एक्स प्लस 15x should be equal to the amount charged by the great holidays 84 plus 12x. From this we have the corresponding mathematical equation 15x is equal to 84 plus 12x, and I know you can solve this easily by taking this 12x on the right hand side, and this will give you 15x minus 12x 84, and this will give you 3x is equal to 84. 3x is equal to 84. X is equal 84 to over 3. 84 over 3, and cancelling this 3, cancelling 84 by 3, we have 3 2s are 6 and 3 8s are 24. So we have 28. Yes, x value is 28. X value is 28. तो number of people जो holidays पे गए वो कितने आ गए? 28. 28. Now please, any questions about this question? No, sir. Hamna? No, sir. No. Okay. No. If you have some problems, you I advise you to listen the video once again and note the steps which I told you in the lecture. Thank you.